बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, जब ते साध संगत मोह पाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। को बैरी नहीं बेगाना, ना को बैरी नहीं बेगाना। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई, सगल संग हमको बनवाई। जो प्रभु कीनो सो भल मानो, जो प्रभु कीनो सो भल मानो। जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो, एह सुमत साधु ते पाई, एह सुमत साधु ते पाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। सब महरब रहा प्रभु में को, सब में रब रहा प्रभु में को। सब महरब रहा प्रभु में को, पेख पेख नानक बिगसाई, पेख पेख नानक बिगसाई। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, जब ते साध संगत मोह पाई। बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज भगत पूरण सिंह जी मशहूर समाज सेवी जिन्हां दे नां तो हिंदुस्तान पंजाब खास तौर पर हिंदुस्तान भर का बच्चा बच्चा जाणू है, उन्हां दी 28वीं सालाना बरसी मनाई जा रही है।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਕਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 10ਵੀਂ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਸਟਲ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 10ਵੀਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਲਬੱਤਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਿੰਗਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਿਮਾਗੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਥੱਲੇ, ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਆਪੂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਆਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਵੇ, ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕਰਨੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ
संपर्क स्थापित करे, ਉਹਦੀ भगती करे, ये एक हिस्सा है। लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ भी ਜ਼ਰੂਰੀ हिस्सा ये है कि उसकी ਜਿਹੜੀ मखलूक है उसकी सेवा करे। और हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम के बानी ने, कि देखो, पूछा गया मुसलमान कौन है? आप जी ने फरमाया कि अल मुस्लिम मन सलमन नासा बियदिही व लिसानिही। मुसलमान वो है जिसकी हाथ ते जिसकी जुबान तो बाकी लोग सुरक्षित रहें, किसी को दुख ना पुजे, जिथों तक हो सके लोगों को आराम पहुँचाए, लोगों की सेवा करे। और जे इंसान सेवा नहीं करता तो हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिक्ख्या अनुसार, इस्लाम की सिक्ख्या अनुसार ਉਹਦੀ भगती का कोई फायदा नहीं। जे लोगों ने वैर विरोध रखता है, ईर्खा रखता है, नफरत करता है, या उन्होंने सेवा नहीं करता, ਉਹਦੇ सामने ਉਹਦਾ गुआढ़ी भुखा है, ਉਹਦੇ सामने ਉਹਦਾ रिश्तेदार भुखा है या परेशान है, और वो भगती कर रहा है, मसीते जाके नमाज पढ़ रहा है, हज कर रहा है, भावें 7 हज कर ले, उसके इस भगती का, उस इबादत का, उस हज का कोई फायदा नहीं जब तक वो अपने जोड़े मखलूक खुदा है उसकी सेवा नहीं करता। तो इस लिहाज नाल भगत जी की मैं समझना कि बहुत वड्डी सेवा है। यदि जिन्नी शलाघा की जाए घट है। और उन्होंने तो पद्म श्री अवार्ड भी मिले और बाद उन्होंने लौटा दिता जितना कि मेरा ज्ञान है। और लेकिन बहरहाल उन्होंने सम्मानित किया गया, वो भी कोई अवार्ड मिले और बाकी वो इस काबिल सन। मैं तुहानूं दसना चाहना कि असल च हर धर्म के विच ही सेवा का बड़ा महत्व है। लोग करन या ना करन वक्री गल है। इस्लाम की गल मैं दसा क्योंकि मैं इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा है। हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार संगत नूं कहा, फरमाया कि देखो एक बंदा रब कोल हाज़र होया और रब ने उन्होंने पूछा कि भाई तू, मैं भुखा सी, तू मैनू रोटी नहीं दी, मैं तो आया सी, तू मैंने पानी नहीं पाया, मैं बीमार सी, तो मेरी बीमार पुरसी नहीं की। वो बंदा हैरान होकर पूछेगा कि या अल्लाह, ए परमात्मा, ए वाहगुरू अल्लाह, तू कदों बीमार होया? तू तो वाहगुरू है, परमात्मा है, तू तो बीमार होंदा नहीं, तू तो भुखा होंदा नहीं, तेनों तो प्यास लगती नहीं। तो आप जी ने फरमाया कि नहीं, मेरा फलाना बंदा भुखा सी और तेरे को खाना लैन वास्ते आया सी, तू उन्होंने इनकार कर दिता, तो उसनों इनकार नहीं किया, मैनू इनकार किया। फलाना बंदा त्यार सी, तू पानी नहीं पाया, उन्होंने पानी तो मना नहीं किया, तू मैनू त्यार रखा, मैनू पानी तो मना किया। मतलब यह है कि जे इंसान मखलूक खुदा की सेवा करेगा तो गोया समझ लो रब राजी होएगा। जे मखलूक खुदा की सेवा नहीं है तो रब राजी नहीं है। और यही मैं समझना पैगाम जड़ा है ये गुरु ग्रंथ साहब का है, सांझीवालता का संदेश है और मुहब्बत और प्यार का संदेश है। और मैं समझना जिस तो प्रभावित होके ही साढ़े भगत पूरण सिंह जी, जिन्होंने तो मैं समझना है कि जो सही तौर पर भाई कन्हैया जी का कोई वारिस है तो भगत पूरण सिंह जी। भगत पूरण सिंह जी ने तो सारे जीवन अपना जोड़ा है लोगों की सेवा के लेखे लाता। तो मैं दस रहा सी कि इस सिख धर्म तो प्रभावित होके, गुरु ग्रंथ साहब तो प्रभावित होके उन्होंने अपना काम शुरू किया और उन्हें नेकी दा लोगों की सेवा का, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब तो भी भरिया पिया सांझीवालता दे सिक्ख्या नाल। और असी जो पढ़ने तो गुरु ग्रंथ साहब भी इस गल का आदेश है, हुक्म है, जिस तरह कि भगत जी ने जो सेवा की पिंगलवाड़े भी असी देखने, मैनू भी एक दो बार विजिट करने का मौका मिले डॉक्टर किरपाल सिंह साहब नाल, भाई अंखी साहब नाल, और जो चीफ खालसा दीवान के प्रधान सन किरपाल सिंह। मैं देखा कि कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, उत्थे हर धर्म के लोगों की सेवा हो रही है। ये नहीं कि सिख ही उत्थे सिखी भर्ती किए जाते हैं, सिखों की सेवा हो रही, नहीं, हर धर्म। तो ये गुरु ग्रंथ साहब के शिक्षा दी गई है, ना को बैरी नहीं बिगाना, बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनाई, जो प्रभ कीनो
सो भल मान्यो ए सुमत साधु ते पाई, सब में रव रिया प्रभ एक है, भेख भेख नानक विसाई। भाई कोई बैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं, सब में सारिਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ बैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं, कोई दवायत नहीं, तो फिर तो सारी मानवता अपनी है। मखलूक खुदा परमात्मा की जिहड़ी मखलूक है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रचना है, असल इंसान धार्मिक इंसान वही है कि जिहड़ा बगैर वैर विरोध दे उन्हां नाल मुहब्बत प्यार करता, उन्हां दी सेवा करता। हुण हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने बड़ा इस गल तो जोर दिता है, कुरान मजीद जोर दिता गया है सांझीवालता ते। कुरान मजीद में एक आदेश आता है, एक आयत आती है, वो है कि लिखा है कि या अय्युहन्नासो इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। ऐ लोगो, या अय्युहन्नास, ये नहीं क्या मुसलमानों, ऐ लोगो, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन, तो सारे मर्द औरत तो पैदा होए हो। दूसरी जगह ये भी दस्या गया है कि तुहाडी पैदाइश मिट्टी तो हुई है, लेकिन इत्थे दस्या गया कि अगे इंसान फिर मर्द औरत तो पैदा होंदा है। मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला, फिर तुसी कबीलियां च ते टोलियां च ते वंडे गए, और फरमाया कि जिहड़े टोले कबीले या तुहाडी जात पात है, तुहाडी बरादरी है, ये तुहाडी लिताअरफू, तुहाडी आइडेंटिटी वास्ते है, तुहाडी पहचान वास्ते है, तुहाडी शनाख्त वास्ते है, तुहाडे तारुफ वास्ते है। ये किसी का वड्डे या छोटे होने का प्रतीक नहीं हैगा। इस वास्ते वड्डा कौन है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। हाँ, वड्डा हो है परमात्मा का प्यारा हो है जिहड़ा संजमी है, जिहड़े संजम का धारण करता है, जिहड़ा लोग रब को डर के चलता है। और रब को डरन का हुक्म ग्रंथ साहब भी लिखा है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर काल बोलते जो नहीं सह पंगुर प्रसाद। परमात्मा के की गुण ने? निर्वैर, किसी ने वैर नहीं रखता, निरभौ, किसी को डरता नहीं। लेकिन बंदे का खासा है कि वह रब को डर के चले। जिस तरह एक इंसान जो किसी प्रेमी को डरता है कि जी मेरी महबूबा है, जो फलाना मैं काम किया गलत तो वो मेरे को नाराज़ हो जाएगी, इस तरह जोड़ा एक इंसान जो रब वाला इंसान है और रब को डर के काम करता है कि जे मैं फलाना गलत काम किया, किसी ने जुल्म किया, किसी की निंदा चुगली की, तो मैं मेरा रब मेरे तो नाराज़ हो जाएगा। इस वास्ते उस तो बचता है कि परमात्मा मेरा नाराज़, इस वास्ते डरता। डरन का मतलब ये नहीं कि रब को डरावनी चीज़ तो डरना चाहिए। तो डर है कि डरन का मतलब यह है कि कोई ऐसा काम साढ़े को ना हो जाए जिस तो साडा प्यारा परमपिता परमात्मा वाहगुरू अल्लाह साढ़े तो नाराज़ हो जाए। तो इस चीज़ नूं मैं समझना गुरु ग्रंथ साहब जी भी इस ते जोर दिता गया है और सांझीवालता का संदेश दिता गया है और निम्रता का संदेश दिता गया है। और मैं तो बाद दफ़ा कहना कि गुरु ग्रंथ साहब के विच ते सारे लोगों को नसीहत की गई है। मुसलमान जो देखा तो मुसलमान जे हिंदू सामने आया तो हिंदू मूले बोले खोटी जय नाथ के अच्छे पूज कराई, अंधे गूंगे अनंदार पाथरले पूजे मोगे। ओए बई तुसी पत्थर ना पूजा करो, तुसी बुतां दी पूजा ना करया करो, यही इस्लाम कहता है कि कुल हो अल्लाह अहद, ऐ बंदिया तेरा रब एक है, वही भक्ति का। और फिर यह है कि मुसलमान भी वर्जिया गया है। क्या है कि मुसलमान किस तरह का होना चाहिए? मुसलमान कहावन मुश्किल जहाँ होए तो मुसलमान कहावै, अव्वल औल दिन कर मीठा मुश्किल माना माल मसावै।
होए मुस्लिम दीन मुहाने मरण जीवन का परम चकावै, रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर करता मन्ने आप गवावै, तो नानक सिर्फ जिया में रहमत होए तो मुसलमान का। भाई तू सारे जिया वास्ते रहमत बन जा तो मुसलमान है, सारे जिया वास्ते रहमत बन जा तो भगत पूरन सिंह बन जाएगा, सारे जिया वास्ते रहमत बन जा तो तू होर जो नेक इंसान दुनिया के हैगे ने पीर पैगंबर वो तेरे खासा आ जाएगा, रब का प्यारा हो जाएगा। तो इस बार फरमाया कि वो सारे जिया वास्ते रहमत होंदा मुसलमान। पंजम पातशाह ने फरमाया मुसलमान कहावन मुस्कर जहाँ होए तो मुसलमान, पंजम पातशाह ने फरमाया कि मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर का बल दिल ते तो होवे, दुनिया रंग ना आवे नेड़े जो कुसम पाट के पा खरा। मुसलमान जड़ा वो तो मोम दिल होना चाहिए। कौन है मुसलमान? जड़ा मोम दिल होए, नरम दिल होए, पत्थर दिल ना होए। वही हजरत मोहम्मद साहब ने गल की जी, उन्हें मैं तुहानू दसी है कि मुसलमान हो जिसकी हाथ से जिसकी जुबान तो दूजे सारे लोग सुरक्षित रहन, महफूज रहन, किसी को दुख ना पुजे, वह दिल बिल्कुल नरम होवे। यही गुरबाणी कहती है मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर का अमल दिल ते होवे। हुण जे कोई मिसाल के तौर पर कोई लोगों ते जुल्म करे, अत्याचार करे, लड़ाई मारकुट करे, लड़ाई झगड़ा करे, लोगों का हक मारे, तो फिर मुसलमान तो नहीं ना खवा सकता, वो सच्चा सिख नहीं खवा सकता, वो खालसा नहीं खवा सकता। खालसा तो यही है, ना को बैरी नहीं बिगाना। मुसलमान तो यही है, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर का अमल दिल ते तो होवे। अंदर का जी मैल है दिल के उत्ते, मैल जी है उन्होंने धो दवे, साफ सुथरा कर, वह बिल्कुल आईने की तरह, शीशे की तरह दिल साफ होना चाहिए हर एक वास्ते। दुनिया रंग ना आवे नेड़े, दुनिया का रंग वो कोल नहीं आता जड़ा हकीकी मुसलमान है, जड़ा रब वाला है। ते जो कुसम पाट क्यों हारा जैसा ऐ क्यों अंग साफ सुथरा सुचा। तो गल है हर धर्म दे विच बड़ी ही प्यार ते मुहब्बत की शिक्षा दी गई है। और मैं समझना है कि गुरु ग्रंथ साहब जड़ा असी पढ़ते रहने, सुनते भी रहने, वो इन्नी शिक्षा कुरान मजीद की तरह मैनू मौका मिले कोई ग्रंथ साहब पढ़न का, और मैं समझना है कि कुरान मजीद बाज़ ते हिस्से इस तरह लगता है जिस तरह कुरान मजीद के ही हिस्से मौजूद ने वो, या वह पंजाबी अनुवाद है। क्योंकि जोड़े महापुरख होंगे ने, जोड़े रूहानी लोग होंगे ने, उन्हों दी गल्लां साझियां होंदियां ने, इक्को जी गल्लां होंदियां ने, और उन्हों दी गल्लां जिहड़ियां ने वो प्यार भरियां होंदियां ने। इस वास्ते सिख धर्म होए, गुरु ग्रंथ साहब होए, कुरान मजीद होए, या हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा होए। अब गुआढ़ी की गल हो रही सी, मैनूं याद आ रहा, हज़रत मुहम्मद साहब तो संगत बैठे सी, तो लोगों ने पूछा आप जी फरमान लगे कि वो बंदा जन्नत में नहीं जा सकता। हम जन्नत की है? मुक्ति जिस तरह साढ़े सिख भरा कहते हैं या हिंदू मुक्ति प्राप्त होना, मुक्ति प्राप्त हो गई जन्नत चला गया इंसान। और फरमाया कि जेड़ा वो बंदा आपने फरमाया वो जन्नत नहीं जा सकता, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? फरमाया साहबा ने पूछा, आप जी के जोड़े साथी सन, डिसिपल सन, उन्होंने पूछा कि अल्लाह के हजूर, अल्लाह के प्यारे हजूर, कौन जन्नत नहीं जा सकता? आप जी ने फरमाया जिहदा गुआढ़ी उस तो दुखी है। ये नहीं फरमाया कि गुआढ़ी मुसलमान होवे, हिंदू होवे, कोई होवे, ईसाई होवे, यहूदी होवे। फरमाया कि गुआढ़ी जो दुखी है तो बंदा भावें जिन्नी मर्जी भगती कर ले, नमाज़ां पढ़ ले, रोज़े रख ले, और जन्नत नहीं जा सकता। इस प्रकार जिस तरह कि मैं जिक्र किया सिख धर्म के भरिया पिया, और साढ़े भाई कन्हैया जी के बड़े वाक़यात असीं सुनते रहने, पढ़ते रहने। पातशाह के दौर के जदों जंग लग रही सी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन दुश्मन है या अपना है, दुश्मन जख्मी है या अपना जड़ा सज्जन है वो जख्मी है। उन्होंने हर एक की मरम पट्टी की,
हर एक दे मूँह 'ਚ पानी पाया। लोगों ने सिखा ने शिकायत भी की कि भाई ये गुरु जी ये तो दुश्मनों को पानी पियाई जाते हैं, फिर उठ खड़े हो। तो बुलाया गया, कह लगे मैंने तो सारे च रब नज़र आता। तो ये हकीकत है, ये रब वालियां दी गल्लां ने, जिहड़े खुदा दे प्यारे ने। मैं तुहानूं दसना किन्नियां सांझियां गल्लां होंदियां ने, किस तरह मिलदियां जुलदियां गल्लां होंदियां ने। हज़रत मुहम्मद साहब ने भी जंगां लड़ियां, जिस तरह गुरु साहिबान ने भी, बास गुरु साहिबान ने जंगां लड़ियां। तो हज़रत मुहम्मद साहब ने जब जंग लड़ी तो फौज में जो भेजन लगे, फौज का भी आपके कुछ साथी सन, तो आप जी ने फरमाया देखो जंग की इजाजत तो है, डिफेंस की इजाजत है, कदे भी आप जी ने कोई ऑफेंसिव जंग नहीं की। फरमाया डिफेंस की इजाजत है, तो डिफेंस भी किस तरह करना है कि किसी बुढ़े को नहीं कतल करना, किसी बच्चे को कतल नहीं करना, चाहे दुश्मनों के ही कतल कर रहे होंगे ना। और औरतों के हाथ नहीं चुकना, बीमारां ते हाथ नहीं चुकना, फुलदार ते फलदार दरख्तां नहीं कटना। तो ये मतलब आप जी ने बड़िया पाबंदियां दे नाल जंग की इजाजत दी। और फरमाया कि जिहड़ा तलवार सुट देवे उस ते तलवार नहीं चुकनी। जिहड़ा कहे अच्छा जी मैं नहीं लड़ता, चलो वो तो लो जी, चूंकि तलवार सुटती उन्होंने हथा पड़ के हमला करते। फरमाया नहीं, दुश्मन का पानी खराब नहीं करना। अजकल की हो रहा है, पानी खराब कर छड़ते हैं सारे का सारा, बिजली कट देंगे ने, दरख्त फसलां तबाह कर छड़ते हैं। लेकिन हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहला जड़ी जंग वास्ते लाएमल बनाया, वो अज भी सुनहरी अखरां लिखा। और जिस तरह के मैं दसिया भाई कन्हैया जी और फिर सिख गुरु साहबान ने भी इस पर अमल किया। और इस पर जो अमल किया तो अज असीं देख रहे हैं कि दुनिया दे विच माशाअल्लाह सिख कौम अज भी इस पर अमल कर रही है, सेवा भावना विच है। और फिर मैं अखीर च भगत पूरन सिंह जी का, मैं समझना शायद मेरा टाइम खत्म हो रहा, भगत पूरन सिंह जी का जिक्र कराँगा इस 28वीं बरसी के मौके पर कि भगत जी जे अंदर जो जज्बा सी, परमात्मा करे कि वो जज्बा सारे इंसानों में पैदा हो जाए। और इस मौके पर डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी जिहड़े मुखी ने इस संस्था के, मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने मौका मिल दिता कि मैं 4 गल्लां सांझियां कर सकां। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।